So let us have the second lecture on architectural acoustic. I think I am audible to you people. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the second lecture on the architectural acoustic, and you can see a very beautiful picture of an auditorium of a USA which has been designed to reduce all the defects related to the architectural acoustics. So anyway, let us see that what is the reverberation. So sound waves are produced in a big hall. They spread out, scatter, and strike the surfaces of the various objects in the hall, such as ceiling, wall, and floor. कहीं जब स्पीकर किसी पोडियम से बोलता है किसी भी ऑडिटोरियम में, किसी हॉल में, बड़े हॉल में, तो ऐसा नहीं है कि वो साउंड सीधे डायरेक्टली ऑडियंस के पास पहुंचती है, रादर ये स्प्रेड होती है पूरे हॉल में, और जितने भी उसमें आर्टिकल्स रहते हैं, जितने वॉल्स रहती हैं, जो सरफेसेस जो उसको बाउंड करती हैं, उन सब से रिफ्लेक्शन होता है, उस पर स्ट्राइक करती हैं, स्कैटरिंग होती है, फिर उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद जो ओवरऑल साउंड होती है वो किसी ऑडियंस के पास पहुंचती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहों से आने वाली आवाज वो डायरेक्टली पहुंच रही हो और कहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आ रही हो, तो मे बी कि उनमें कुछ टाइम लैग हो जाए। तो ऐसे में तो बहुत ही पेनफुल होगा किसी भी ऑडियंस के लिए ये सुनना, क्योंकि उसे दो साउंड सुनाई पड़ेगी उसी चीज के लिए। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रिवर्बरेशन टाइम की स्टडी की गई, और क्या देखा गया कि really this is a very important factor which used to judge the quality of an auditorium or the hall. So some of the sound energy is reflected and some absorbed, and thus the distraction of the sound energy in the hall continues to be affected by some part of that. Maybe they absorbed by the surface, some maybe they reflected from that, and hence the distraction in the sound, what originally has been produced at the source, that is not reaching to the audience. Rather, multiple reflection, distraction, and the combination of other phenomena leads to the resultant of the sound, and that is reaching to the audience. The reflected portion travels back into the hall and reunite to form the objectionable echoes and affects the good hearing. What I was telling that if we are having the sound which has been reflected from the different articles and objects lying in that hall, and they are reuniting and reaching to the audience rather than the direct reach of the sound from the source of the sound wave in that hall, then there is the objectionable echoes there, that is known as the echo, and that affects the good hearing of the audience of a hall. Thus, an audience in a hall receive the sound in two ways: directly from the source and after suffering the reflection. अब हमारे पास दो पोर्शन हो गया, एक तो सीधे सीधे अभी जब मैंने एक स्टेडियम की फोटो दिखाई थी इसके पहले, तो देखा था डायरेक्ट साउंड वेव ऑडियंस के पास पहुंच रही है और कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा पहुंच रही। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में कुछ लैग होगा। अब ये लैग किस हद तक मिनिमाइज होना चाहिए या ये लैग नहीं होना चाहिए, या होना भी चाहिए तो कितना टाइम ड्यूरेशन परमिट है दोनों के बीच में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट to decide the quality of the sound quality of a particular auditorium or the hall. What type of quality of the sound is there, which is persisting in hall and reaching to the audience. So for that, a very good parameter that is known as the reverberation.
and that we have to study here. The quality of the sound received by the audience is a combined effect of these two set of waves. ये दोनों waves जो directly पहुंच रही है और एक multiple reflection के बाद पहुंच रही है, इनका combined effect audience के पास पहुंच रहा है. There is a time gap between the sound wave directly received from the source and the waves received from the successive reflection. Due to this reason, sound received by audience does not cease immediately, but it persists for some time even after the source is stopped. क्या हो रहा है? Sound wave जो ऑडियंस के पास पहुंच रही है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचना है उसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा समय लगाएगी पहुंचने में, क्योंकि साउंड की जो वेलोसिटी मानी जाती है वो 330 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ समय उसमें लग जाएगा. तो अगर हम सोर्स को ऑफ भी कर देते हैं तो उसके कुछ समय बाद तक साउंड उस हॉल में गूंजता रहेगा या बना रहेगा. So this persistence of audible sound after the source has ceased to emit the sound is called the reverberation. Try to understand that कि sound source को off कर दिया गया, थोड़ी देर बजाने के बाद उसे off कर दिया गया, फिर भी कुछ देर तक sound उस हॉल में बनी रहेगी. क्यों बनी रहेगी? क्योंकि after multiple reflection they are reaching to the audience, and in that process of reflection and scattering, absorption, all those phenomena which is occurring there, and then after reuniting and being the resultant reaching to the audience, that have a time gap, and that time gap up to what time that resultant will persist in the hall, even if we are stopping the source, then that is known as the reverberation time. The time during which sound persists in the hall is called the reverberation time of the sound, what already I have discussed and explained. It is measured from the time that the originally sound is produced, or in case of continuous note from the time that the source stopped sounding to the time at which the sound becomes inaudible in that hall. यानी साउंड बंद करने के कितनी देर तक साउंड सुनाई दे रही है, that is known as the reverberation time. The average growth and fall of the sound density for a spoken syllable within an auditorium is exactly similar to the growth and decay curve of the electric current in the inductive circuit. There is a good analogy between the growth and decay of the electric current in the inductive circuit. Exactly same situation is there for the growth and fall of the sound density in the hall. Initially, when a source emits sound continuously, the listener receives an increasing sound intensity. यानी जैसे जैसे वो साउंड वहां से प्रोड्यूस हो रहा है और कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो लिसनर जो रिसीव करेगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली. लेकिन आफ्टर अ फ्यू टाइम द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स becomes equal to the energy absorbed or dissipated by the room. यानी कितनी रूम की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, चाहे ऑडियंस के रूप में हो, चाहे कर्टेन के रूप में हो, चाहे दरवाजे के रूप में हो, चाहे खिड़की के रूप में हो, चाहे फ्लोर के रूप में हो, या हम कुछ एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाए हुए हैं दीवारों पर, तो एक समय आएगा कि इनका वहां से जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन रेट वो लगभग इक्वल हो जाएंगे और कर्व हमारा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. At this stage, the resultant energy does not increase further with the time. That is, it attains the average steady value, as it happened in case of the charging and discharging of the inductive circuits, or the growth and decay of the current circuit current in the
inductive circuit. Now, if the original sound ceases, the sound here heard does not stop instantaneously, because the listener continues to receive the successive reflection till the minimum audible level has been achieved in that hall. यानी हम अगर सोर्स बंद भी कर दिए तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस साउंड आ रही थी, तो वो बंद होने के बाद भी कुछ देर तक लिसनर को रिसीव होती रहेगी, और इन्हीं स्टॉपिंग पॉइंट और the minimum level of the sound has been received by the audience, or you can say that is the unaudibility level is reached. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का, that is known as the reverberation time. The time in which the energy density of sound falls to 10 to the power minus 6 time of its steady value after the source is cut off, it's known as the standard time of reverberation. इसमें एक नई चीज आपको बताना है यहाँ पर हमें कि एनर्जी डेंसिटी का फॉल 10 टू द पावर माइनस 6 टाइम ऑफ द स्टेडी वैल्यू. तो ये बताओ 10 टू द पावर माइनस 6 वैल्यू कहां से आई? एक्चुअली क्या है, अगर हम इसके बारे में ध्यान दें तो आपने देखा होगा कि साउंड को हमेशा लॉगरिथमिक स्केल में डिफाइन किया गया है, और जो ह्यूमन बीइंग के ऑडिशन का लेवल है, यानी वो कितना साउंड वेव की किस तरह से सेंसेशन को रियलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे मान लीजिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है. तो अब ऐसा नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकता है आपका कान और मेम्ब्रेन, तो उसके लेवल डिफाइन किए गए हैं कि भाई जैसे आप अगर ग्राफ बनाएं तो पहला लेवल, उससे थोड़ा सा ऊपर 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 लेवल, इस तरीके से हमारे जो कान का सेंसेशन है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में 10 टू द पावर 12 स्टेप्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है. तो इन्हीं जो लेवल डिस्टिंक्शन का है, जो हमारे कैपेबिलिटी है सेंस ऑर्गन की, उसी को 10 टू द पावर 12 रेट किया गया है. अब 10 टू द पावर 12 को अगर हम आधा रिड्यूस करना चाहें तो 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, यानी उसके मिड पॉइंट को, यानी उसके मिड पॉइंट के रेंज को अगर हम ले तो उसी के आधार पर हम रिवर्बरेशन टाइम का स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. द टाइम इन विच द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द साउंड falls to the level of 10 to the power minus 6 times of the steady value after the source is cut off is known as the standard time of reverberation. This is the graph which is exactly in the same way as you might have seen the growth and decay of the circuit current in the inductive circuit. So what you are seeing here, that the energy density here that has been plotted on the y-axis, and that is in terms of E, and its maximum value is there, that is of the level of E0, and that is the maximum value. When it falls to 10 to the power minus 6 times of this one, then the steady maximum value to the fall of the 10 to the power minus 6 times of E0, this time is known as the standard time of reverberation. The persistence of the audible sound after the sound has ceased to emit the sound is called the reverberation. The time in which the energy density of the sound falls to 10 to the power minus 6 times to its steady value after the source is cut off is known as the standard time of reverberation. What already you have seen in the picture also. Now, determination of the time of reverberation by the Savin's law.
सेबिन ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी बात पर डिवोट किया कि हाउ वी कैन find we can determine the value of the reverberation time and what are the factors which are affecting to the reverberation and how a particular hall can be constructed as the uh, acoustic defect free hall. So Sabin's law is based on the experimental finding for which he used. Basically जब शेबिन ने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने empirically इस फार्मूले को डिराइव किया on the basis of the facts what he has observed in the hall. तो उसके लिए उन्होंने एक स्टॉप वॉच लिया और उन्होंने एक और ट्यूनिंग फॉर्क लिया जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा था। बस यही दो के आधार पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया और जिस हॉल में थे उस हॉल की डायमेंशन, उसका वॉल्यूम वगैरह भी उन्होंने देखा कि कितना वॉल्यूम है, कितनी दूरी है, कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, कितना गहरा है। तो इन फैक्टर्स के आधार पर उन्होंने कुछ फाइंडिंग किया, लेकिन उन फाइंडिंग के पहले, इन फाइंडिंग के लिए उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए वो आप देखिए। स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ साउंड वेव having initial intensity of 10 to the power 6 times that of the human audible intensity in a small hall and a stopwatch. ये तीन चीजें उन्होंने लिया। एक तो एक हॉल लिया, दूसरा एक सोर्स लिया जिसकी जो इनिशियल इंटेंसिटी है ह्यूमन ऑडिबिलिटी या ह्यूमन ऑडिबल रेंज से 10 to the power 6 टाइम है, और एक स्टॉप वॉच लिया। अब ये सी बात है कि 10 to the power -6 टाइम आपने देखा था उसका, अगर इस इंटेंसिटी का 10 to the power -6 टाइम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मिनिमम पे आ जाएगा या जीरो लेवल पे आ जाएगा। 10 to the power 0 माने 1 हो जाएगा, आप यूं कह लीजिए। तो उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन नोट करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया स्टॉप वॉच का। On the basis of his experimental finding, he established a relation as that T is equal to 0.05 V upon sigma AS, जहां पर A absorption coefficient है और S surface है। सिग्मा AS क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि मान लीजिए दरवाजा है या खिड़की है या कहीं पर्दे लगे हुए हैं, कहीं दीवार है, तो सबका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो उनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को रिस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई किया गया और उनको आपस में जोड़ लिया गया है, इसीलिए सिग्मा AS लिखा गया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A1 S1 plus A2 S2 plus A3 S2, whatever up to that range की what type of the situation is prevailing in the hall. A is the absorption coefficient. A denotes a small area. S actually यहाँ पर S होना चाहिए, A नहीं होगा। S small denotes the small area. T is the reverberation time and V is the volume of the room. In order to derive the Sabin's expression for the reverberation time, actually फिर बाद में इसको मैथमेटिकली डिराइव भी किया गया थियोरेटिकल प्रिंसिपल के आधार पर कि सेबिन्स लॉ कैसे डिराइव किया जाएगा। तो इसके लिए ये कंसीडर किया गया कि भाई चलो कंसीडर करते हैं A1 A2 A3 अप टू लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हैज बीन टेकन फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए हॉल। तो with the absorption coefficient at each reflection of the sound of the surface having S1 S2 S3, जैसे मैंने बताया कि हॉल में दरवाजे भी हो सकते हैं, कर्टेन भी हो सकता है, खिड़की भी हो सकती है, फ्लोर भी हो सकता है, वुडन फ्लोर भी हो सकता है, वुडन आर्टिकल उसकी वॉल पर भी पेस्ट हो सकती हैं, कुछ अदर एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो सकते हैं। तो सबकी एरिया और सबके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इस तरीके से कंसीडर किया गया। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज ऑफ द absorption coefficient can be given as A bar is equal to A1 S1 plus A2 S2 plus A3 S3 upon S1 plus S2 plus S3 and so on. तो टोटल जो सरफेस एरिया होगी उसको हम कहेंगे कैपिटल S, और ऑब्वियस सी बात है वो सभी सरफेस एरिया को जोड़ करके बनेगा।
और ऊपर A1 यानी रिस्पेक्टिव एरिया का क्या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, उनके मल्टीपल को एक साथ सम किया गया, एंड हेंस वी गॉट दिस एक्सप्रेशन दैट सिग्मा A1 S1 is equal to capital S into A bar. ये इसकी वैल्यू हुई. Jaeger suggested that a sound travel at average distance 4V upon S between two successive reflection, where V is the volume of the room and S is the total surface area. Actually, Jaeger एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कैलकुलेट किया, एम्पिरिकली ये देखा, और ये एम्पिरिकली क्या ज्यादा बेहतर होगा कि हमें इसे एक्सपेरिमेंटली कहें, कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये डिसाइड किया कि अगर हम एवरेज डिस्टेंस साउंड की कंसीडर करें कि कैसे ट्रेवल कर रहा है, कि that the sound travels average distance between two successive reflection. दो successive reflection में average distance कितनी होगी, तो that is 4V upon S. That depends that what is the surface area and what is the volume. इसमें आप अगर देख रहे हो तो V को अगर हम S से डिवाइड करेंगे तो L की डायमेंशन आएगी और वो डिस्टेंस होगा, एंड 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आ रही है, कि साउंड का जो एवरेज डिस्टेंस है दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बीच में, वो 4 टाइम ऑफ द डायमेंशन ऑफ द हॉल है. अगर हम मान लीजिए यही अब L क्या आ रहा है, L का मतलब यहाँ पर है कि अगर हम क्यूब ले लें तो ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से, कि L क्यूब होगा और नीचे L स्क्वायर होगा. तो किसी एक डायमेंशन को अगर हम क्यूब मान लें तो उस डायमेंशन के 3 टाइम्स एवरेज डिस्टेंस साउंड ट्रेवल कर सकती है बिटवीन टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन. तो if v is the velocity of the sound, then the time between any two successive reflection, तो obvious सी बात है, distance upon velocity that will be equal to time. 4v upon s upon v, that is 4 capital V upon capital S into small v, that is velocity. Now the average number of reflection in time t is given by, अब देखो यहां पर निकाला गया है कि एवरेज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन टाइम टी, टी टाइम में एवरेज रिफ्लेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम टी में भाग दे देंगे, टी में ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भाग दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या हुआ कि v is the velocity of the sound wave, then the time taken between two successive reflection, यानी दो successive reflection के बीच में टाइम इतना है, तो t टाइम में कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, ये निकालने के लिए इस टाइम को, टाइम जो t टाइम है उसी टाइम को जो दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बीच का टाइम था उससे डिवाइड कर दिया गया. एंड इन अ सिंगल रिफ्लेक्शन, if A bar is the average, is the absorption coefficient, then the reflected fraction will be given as, यानी एक सिंगल रिफ्लेक्शन में, यानी ये जो लाइट जो साउंड आ रहा है किसी सरफेस से सिंगल रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना होगा, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का तो सीधा सीधा मतलब यही है कि जब कोई भी वेव कहीं पे टकराती है तो जितना एब्जॉर्ब हो जाती है उतना एब्जॉर्ब हो जाती है, जो लौट के आती है दोनों का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर A bar is the absorption coefficient, then 1 minus A bar will be the portion which has been reflected there. After two successive reflection क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 minus A bar into 1 minus A bar, और and that will be equal to 1 minus A bar whole square. Similarly, we have SVT upon 4V reflection, what already we have calculated between any two successive reflections. कितने टाइम उसमें हो रहा है या कितने नंबर हो रहे हैं रिफ्लेक्शन का, तो
Similarly, after SVT upon 4V reflection, the fraction of the reflected sound will be given as 1 minus A bar whole to the power SVT upon 4V. If I0 is the initial intensity of the sound and IT after the time t, that is after SVT upon 4V reflections. क्यों? क्योंकि t टाइम में इतने number of reflection हो रहे हैं. Then we can rewrite the above equation as that IT is equal to I0 multiplied by the 1 minus A bar to the power SVT upon 4V. At time t means at t is equal to capital T, that has been taken as the reverberation time. Then from the definition of the reverberation time, we know that IT upon I0 is equal to 10 to the power minus 6. क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि IT I0 का अगर 10 to the power minus 6 टाइम हो जाए जितने समय में, that is known as the average time of reverberation. इसीलिए IT upon I0 का जो रेशियो है 10 to the power minus 6 के बराबर किया. Now at a time t is equal to reverberation time, in the above equation what already we have taken, then t 10 to the power minus 6 is equal to 1 minus A bar whole to the power SVT upon 4V. Taking the log on both the sides in the equation 2, or we get that the log base E 10 to the power minus 6 SVT upon 4V log base E of 1 minus A bar. Now t is equal to log E. अब इसमें कैपिटल T की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा रिवर्बरेशन टाइम निकालना है, तो कैपिटल T को हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से ऐसा कर लिए एंड वी गॉट दैट द लॉग ऑफ E log base E 10 to the power minus 6 multiplied by 4V upon SB log base E into 1 minus A bar. And if we will change the base of this log, base 10, then we have to multiply it by 2.3026. ये x नहीं है, ये क्रॉस है, क्रॉस या multiplied by log base 10 to the power base 10 and into 10 to the power minus 6 multiplied by 4V upon SV log E 1 minus A bar. Using V is equal to 1120 फीट पर सेकेंड. एक्चुअली एक यूनिट इसकी जो साउंड की होती है उसको फीट पाउंड एंड सेकेंड में भी मेजर किया जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स की यूनिट रही थी पहले, उस आधार पर, और इसको उन्हीं लोगों ने प्रपोज भी किया था, इसलिए ये वी की इस यूनिट पर ये कैलकुलेशन किया गया. बाद में इसे MKS में भी चेंज किया गया है. तो बाय पुटिंग द वैल्यू of the V here in this expression, or we will get that 2.3026 into 4V और log base 10 to into 10 to the power minus 6 की वैल्यू minus 6 हो गई. और जब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व किया गया तो फाइनली t की वैल्यू minus 0.05V upon S cos log E log base E 1 minus A bar आए. Here t की वैल्यू आ गई आपकी, t is equal to minus 0.05V upon S into log base E 1 minus A bar. This equation is known as the Eyring formula, which can also be written as, अब इसमें क्या किया गया, log वाले पोर्शन को ओपन कर दिया गया, तो log base E 1 minus A bar, तो ये देखो इसमें से थोड़ा गलत लिखा हुआ है, माइनस A बार फिर माइनस A बार स्क्वायर, ये बार होना चाहिए, अपॉन 2. हम रिवाइज्ड एडिशन में इस बुक में सब करेक्शन कर दिए हैं. एंड A बार अपॉन A बार क्यूब अपॉन 3 एंड हियर 0.05V and divided by the expression that is minus s, जो ऊपर वाला माइनस था s के साथ ले लिया गया,
और log E का एक्सपेंशन कर दिया गया। तो in this way we will have the calculation and the and we will, if we will exclude the higher terms here in this expression by taking the first term in the denominator of this expression, then we will have T is equal to 0.05 V upon minus S into minus A bar, and finally 0.05 V upon 5 A bar, or T is equal to 0.05 V upon under root A1 upon, not under root, but upon sigma A1 A2 A1 S1, and the following equation is known as the Franklin's formula, that is T is equal to 0.05 V upon sigma A1 S1. Sigma A1 S1 is equal to SA bar. In the start of very beginning, when we were writing the expression for the average of the absorption coefficient, then we wrote this type of expression. Is the effective absorption coefficient. S is the total area in square feet, and V is the volume in the cubic feet. If we compare it with the earlier equation, जो सेबिन ने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था, एक्सपेरिमेंटली जो डिराइव किया था, अगर उसे हम कंपेयर करें तो दैट इज के वी अपॉन सिग्मा A1 S1, that is equal to 0.05 V upon sigma A1 S1, where K is equal to 0.05 when the dimension are taken in FPS, foot pound second system. The value of K will be equal to 0.165 if the unit will be taken in MKS, meter, MKS system. Already you might have heard as a fundamental unit and fundamental unit and quantities. You might have read in your 10th class or 9th class standard. Thus, the reverberation time can be given as T is equal to 0.165 V upon sigma A1 S1. So this becomes the final formula because there is a change in the numerator, that is in one time you are getting that is 0.05 V, and here you are getting 0.165. That is because of the change in the unit system. In first case, it has been taken as the foot pound, and in other case, it has been taken as the MKS. So the deduction of the Sabin, the duration of the reverberation is almost independent of the position of the source and of the absorber in the room. कहीं भी आपका साउंड का सिस्टम लगा हो या एब्जॉर्बर कहीं भी हो, आफ्टर ऑल जब हम सैचुरेशन सिचुएशन आती है तो हर जितने भी एब्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बर उस हॉल में है, सबके पास तक साउंड वेव चल जाती है, इसलिए कहीं भी हो तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए इससे इंडिपेंडेंट होता है। और चूंकि साउंड पूरे हॉल में जानी ही जानी है, पहुंचनी है स्टेडी स्टेट तक, इसलिए सोर्स कहीं भी रखा हो तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। The effect of any given amount of absorbent is also independent of the position in the room. Now we can calculate the absorption coefficient using the Sabin's formula or using the above expression there. There the absorption coefficient for the surface area is given as alpha is equal to sound energy absorbed by the surface upon the sound energy absorbed by a open window of the same area. एक्चुअली देखो, एक यूनिट को ओपन विंडो यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहा गया कि अगर विंडो को ओपन कर दिया जाए और विंडो क्लोज किया जाए तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसके आधार पर भी हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ सरफेस है वो डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ अ ओपन विंडो, दैट इज द साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस upon the sound energy absorbed by
द ओपन विंडो ऑफ द सेम एरिया, यानी एक बार विंडो बंद है और एक बार विंडो क्लोज है, तो दोनों के बीच में जो एब्जॉर्प्शन का रेशियो है, दैट इज नोन एज द absorption coefficient of that particular surface. तो determination of the absorption coefficient कैसे निकाला जाए? तो if T1 is the reverberation time for an audio frequency source of sound in an empty room, and sigma AS is the absorption coefficient due to the walls, ceiling, and floor of the room, then we can write that T1 is equal to 0.05 V upon sigma AS. When a certain amount of absorption material of surface area a surface area S, and the absorption coefficient A is introduced into the room, then the time of reverberation T2, which has been assumed here, is determined as that T2 is equal to 0.05 V upon sigma AS plus alpha S, where alpha we have taken as absorption coefficient. जो ऊपर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर A, वो absorption coefficient alpha है, not A है. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का एस सरफेस का एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल या एब्जॉर्बेंट उस हॉल की किसी सरफेस पे लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है इससे इसके रिवर्बरेशन टाइम में अंतर पड़ेगा. वो अंतर इसी बात से आएगा कि चूंकि टोटल का टोटल सरफेस एरिया तो वही है, तो जो हमारे पास सरफेस एरिया आई वो पहले वाले सरफेस एरिया में ये एक्स्ट्रा सरफेस एरिया जुट गई. अब आप कहेंगे सरफेस एरिया कैसे बढ़ गई? सरफेस एरिया इसलिए बढ़ गई कि हम इतनी एरिया का एब्जॉर्बिंग मटेरियल उसमें अलग से इंट्रोड्यूस कर लिए, यानी एक इतने का इस अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का एस ए पार्ट एस वैल्यू का एक हमने सरफेस उसमें अदर से क्रिएट कर दिया. तो दैट इज T2 will be this one. If we will compare these two, yeah, by taking the reciprocal of these two, and we will take the difference of these two, then we will have the alpha S upon 0.05 V, and hence alpha can be calculated that the 0.05 V divided by capital S and 1 upon T2 minus 1 upon T1. यहाँ पर absorption coefficient हम मेजर कर लेंगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर हम रिवर्बरेशन टाइम मेजर करेंगे. कब? जब वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था और जब वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो हमें T1 T2 पता चल जाएगा. और बाकी चीजें हमें पता है कि बाकी चीजें पता क्या, अल्फा पता नहीं है, अल्फा निकालना ही है. तो उस एरिया को हम देख लेंगे कि कितने एरिया में अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का सरफेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके आधार पर हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे. The factor affecting the architectural acoustic and their remedies. So there are some important points which must be taken into care when the design of the hall and auditorium will be planned by the engineers for its good architectural acoustic. तो कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन, पहला तो काम ये होना चाहिए कि रिवर्बरेशन कंट्रोल होना चाहिए. एक्चुअली रिवर्बरेशन टाइम ऐसा भी नहीं है कि रिवर्बरेशन टाइम 0 कर दिया जाए. अगर ये 0 कर दिया जाएगा तब भी ये ठीक नहीं है, और अगर ये मैक्सिमम हो जाए तब भी ठीक नहीं है. इसकी एक एवरेज वैल्यू जो मिड में लाई करेगी वही सबसे ज्यादा सुटेबल होती है. जो आप किसी हॉल को स्टूडियो वगैरह में बदलते हैं उसमें रिवर्बरेशन को 0 नहीं किया जाता है, बल्कि रिवर्बरेशन को उसकी एक एवरेज वैल्यू पे ला करके छोड़ा जाता है या क्रिएट किया जाता है कि इसका जो रिवर्बरेशन टाइम हो ये एवरेज वैल्यू ऑफ द रिवर्बरेशन टाइम जो डिफाइन किया गया है उसके आसपास हो. तो अदर इसका एडिक्वेट लाउडनेस क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्या बताओ सर रिवर्बरेशन टाइम 0 करने में क्या प्रॉब्लम है? 0 करने में प्रॉब्लम ये होगा कि जो हमारी साउंड वेव आ रही है, बेसिकली जब कभी घड़े वगैरह पर आप कोई स्पीकर लगा दोगे
तो स्पीकर लगाते हो तो घड़े से जो आवाज आती है वो उसकी आवाज की जो वो होती है हेवीनेस, वो इसी बात पर निर्भर करती है कि आपको साउंड उस घड़े के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर के जो आ रही है और जो साउंड आपको डायरेक्टली आ रही है, दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन आपके सेंस ऑर्गन पर, ईयर पर पहुंचता है, वही इंपैक्ट स्टीरियो का देता है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में अगर हम जीरो टाइम कर देंगे तो दोनों एक साथ आपके कान पर पहुंचेंगी और दोनों में किसी भी तरीके का मॉड्यूलेशन नहीं होगा। तो जो आपका स्टीरियो का इफेक्ट आपको मिल रहा था आपके सेंस ऑर्गन पे, वो नहीं मिलेगा। दिस इज द रीजन। सर स्टीरियो का क्या मतलब होता है? स्टीरियो का मतलब तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। किसी घड़े के ऊपर अगर आप कोई घड़ा खाली ले लीजिए और उसके ऊपर पर कोई स्पीकर रख दीजिए, तो उसके जो गमक की आवाज आती है और घड़ा हटा दीजिए और उस स्पीकर से सीधे सीधे आवाज लीजिए, तो देखोगे कि दोनों के बीच में बहुत अंतर आएगा। जैसे कहते हैं कि इसे स्टीरियो मोड में कर लो, इसे नॉर्मल साउंड मोड में कर लो, इसे और दूसरे मोड में कर लो। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो आप चेंज करते हो, वो चेंज केवल रिवर्बरेशन टाइम का एडजस्टमेंट है, नथिंग एल्स इज देयर। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस की वजह से, जैसे ये कहो कि आपको पाथ डिफरेंस आता है, तो पाथ डिफरेंस की वजह से कहीं कहीं मैक्सिमा आ जाएगा, कहीं कहीं मिनिमा आ जाएगा। और अगर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन फुलफिल नहीं हो या कोई ऐसी बात ना हो, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। यानी ना मैक्सिमा मिला ना मिनिमा मिला, तो बीच की सिचुएशन मिल सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ही उस साउंड वेव में भी हो रहा है कि वहां से लौटने वाली जो साउंड वेव है और जो डायरेक्टली आ रही है, उनके बीच में टाइम डिफरेंस से जो मैक्सिमम कंफर्टेबल ऑडिबिलिटी टू द ह्यूमन बीइंग है, वो अचीव हो जाएगी। शर्त यह है कि मिनिमम और द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिवर्बरेशन टाइम दोनों के बीच में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको वो साउंड इफेक्ट नहीं सुनाई पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? नो सर। तो एडिक्वेट लाउडनेस भी होनी चाहिए। एडिक्वेट लाउडनेस नहीं होएगी तो पूरे जो हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि साउंड कहीं भी रखी जाए, अगर पूरे हॉल में एक स्टेडी लेवल क्रिएट हो गई है, तभी आपको कंफर्ट जोन में हियरिंग होगी। और अगर मान लीजिए कहीं रखे हैं, बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है, तब तो आपको उसके पास जाएंगे तभी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में स्टडी स्टेट आपको आएगी ही नहीं। तो इसलिए इसका जो साउंड का लेवल है वो दैट शुड बी एडिक्वेट एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साउंड। ऐसा ना हो कि कोई ऑब्स्टेकल हो, एक तरफ साउंड जा ही नहीं पा रही है और वो एरिया ब्लैंक है और यहाँ पर आपको एक तरह कंसंट्रेशन हो रहा है। एंड देयर इज द फ्रीडम फॉर द रेजोनेंस। अगर इन जो साउंड वेव जहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं, उनके रेजोनेंस के बाद कंफर्टली या कंफर्ट टू द ऑडियंस अगर क्रिएट होगा, तभी आपको अच्छी हियरिंग की सिचुएशन फील होगी। उसके लिए फ्रीडम होनी चाहिए उस हाल में, किसी भी तरीके का कोई किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ इको, इको भी नहीं होना चाहिए। एंड एब्सेंस ऑफ एटलान इफेक्ट। एक्चुअली एक एटलान ग्रेटिंग होती है, वो एटलान ग्रेटिंग स्पेशली ऑप्टिक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये एटलान इफेक्ट साउंड वेव में भी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें भी रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, इसलिए ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। एंड एक्सटर्नस नॉइज एंड द साउंड इंसुलेशन, यानी कुछ ऐसा कोई नॉइज आ रही है तो उसके लिए इंसुलेशन होना चाहिए कि वो हमें अनवांटेड नॉइज उसमें ना आवे। तो दिस इज ऑल अबाउट what I was interested to discuss with you people. If anything you want to discuss and you want to ask, then please let me know. Otherwise, I should stop here. No sir. Anybody of you people, if any problem is there?